کا مٹی ہی ہے، سونے بننے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ تو بابا فرید الدین گنج شکر نے ایک جملہ کہا تھا، یہ پیارے تمہارے پڑھنے سے بھی اس مٹی سونا بن سکتی ہے، لیکن شرط اتنا ہے کہ بابا فرید الدین جیسی زبان تو پیدا کر دے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نہ جانے بدلوں کی تقدیر دیکھی۔ صرف اللہ کے ولیوں کے اندر خامی اتنی تھی کہ انہوں نے دنیا دار سے نہیں، مدینے والے مصطفیٰ کے تاجدار سے دوستی کی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اللہ رسول سے تم بھی محبت کر لو۔ میں کہتا ہوں کہ آپ وہ نہیں بن سکتے لیکن ان کے غلام ضرور بن سکتے ہیں۔ سنیں سرکار غوث اعظم کی بات، بولے سبحان اللہ۔ بڑے پیر غوث اعظم آج دنیا نام پہ، میں اصلاح معاشرہ کانفرنس آج سے 4 دن پہلے یہ جملہ بولا تھا، پھر اسی جملے کو دہرا کے حضور غوث اعظم کی بات سنے آپ۔ بچپن کا زمانہ سنیں، جب کرامت ہی دیکھنی ہے تو سنتے چلے۔ سرکار غوث اعظم کا بچپن کا زمانہ، رہتے کہاں ہیں؟ بغداد شریف، پیدا کہاں ہوئے؟ جیلان میں۔ غوث اعظم بچوں کے ساتھ کھیل کھیل رہے، اسی بغداد کے اندر ایک بہت بڑا پنڈت رہتا تھا، بہت بڑا پجاری تھا۔ پر ڈے بغداد کے باہر ایک مندر تھی، اس مندر میں وہ پوجا کرنے جاتا تھا۔ دن بدن یہ کام چلتے رہے۔ ایک دن ان کی ایک جوان بیٹی تھی، پنڈت، باپ کی حالات کچھ ٹھیک نہیں تھے۔ اس نے سوچا باپ کی جگہ آج میں مندر جاتی ہوں۔ تھالی لی اپنے ہاتھ میں، تھالی کے اندر 2-3 رنگ کے پھول رکھے، سینور رکھا، کچھ مٹھائیاں، کتابوں میں آتا ہے تھوڑی سی جلیبی رکھی، اس کے ناریل کے گولے رکھے، اس کے مندر کی جانب جانے لگی۔ بغداد کے اندر غوث اعظم سرکار بچوں کے ساتھ کھیل کھیل رہے ہیں۔ جب وہ لڑکی بغداد سے باہر، سارے بچے اور غوث اعظم سرکار اس لڑکی کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ ہمارا آج کا نوجوان ہوتا، نگاہیں کہیں ہوتی، دل اور کہیں ہوتا، لیکن وہ غوث اعظم سرکار ہیں، کن کے ساتھ جا رہے ہیں؟ بغداد کے۔ اس کو چڑھایا، چڑھانے کے بعد میں ایک ضد کی، اس نے ایک دل کے اندر عہد کیا، ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی، میرے بھگوان، میرے ایشور، آج میری مٹھائی کو تم کو کھانا پڑے گا۔ اللہ اللہ، بتاؤ میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے سنا، میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے سنا آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں۔ اللہ اللہ جب وہ ضد کرنے لگی، ضد کرنے کے بعد میں بارہا ضد کرتی رہی، ایک پیر کے بل کھڑی رہی، بس یہی ایک جملہ ہے اس کے کاربوج کے زبان پہ، آج میری مٹھائیاں آپ کو کھانی ہوگی، آج میری مٹھائیاں آپ کو کھانی ہوگی، آج میرے دل کے فریاد کو سننا پڑے گا۔ اللہ اللہ، وہ کہاں چل سکے، وہ کون ہو سکے؟ اللہ اللہ، وہ مٹی کے ہیں، مٹی ہی رہیں گے، نہ وہ تمہیں کچھ دے سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں، نہ تمہارے فریاد کو سن سکتے ہیں نہ اپنی فریاد کو تمہیں بتا سکتے ہیں۔ یہ قوت اگر کسی کو اللہ نے عطا کیا ہے تو سب یہ قوت انہی کو دیا گیا ہے۔ کہ قرآن سے آؤ پوچھے تو قرآن اعلان کر رہا ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ قدرت اگر کسی کو ملی ہے تو وہ صحابہ کرام کو ملی ہے، وہ غوث و خواجہ کو ملی ہے، وہ عبدال و فقیر کو ملی ہے، وہ اللہ کے نیک بندوں کو ملی ہے، وہ سید سالار مسعود غازی کو ملی ہے، وہ خواجہ معین الدین اجمیری کو ملی ہے، وہ میرے کنز الکرامت جبل الاستقامت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کو ملی ہے۔ اور دور نہ جایا جائے، اور میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ کو اختیار ملا ہے۔ اللہ اللہ، جب یہ منتیں کرتی رہی، بغداد
अल्लाह गौसे आज़म सरकार फरमाते हैं, ए बच्चों मुझे उठाओ, मैं देखूं वो लड़की कर क्या रही है। अल्लाह अल्लाह, जब गौसे आज़म अपनी निगाह उस हॉल पे डालते हैं, उस सुराख में अपनी निगाहें जब डालते हैं और जब वो तरह तरह की मिन्नतें फरियादें कर रही है, बचपने का जमाना है, गौसे आज़म को रहम आया, तरस आया उसके रोने पर। सरकार गौसे आज़म कहते हैं कि ए मूर्ति तू क्या कह रही है, इतनी मिन्नतों फरियाद से अगर कोई मेरी बारगाह में आता ना तो मैं अपने नाना जान की बारगाह में नहीं ले जाता, मैं ही उसे आता कर देता। ये गौसे आज़म कह रहे हैं कि तुम मेरे नाम से अब तेरे अंदर जान भी आएगा, तू खाएगी भी, इसकी फरियाद को भी सुने जाएंगे। जब गौसे आज़म ने हुक्म दिया, उसके हाथ हरकत करने लगे, उसके पाँव हरकत करने लगे, उसका सर हरकत करने लगा, उसके जिस्म के आजा आजा हरकत करने लगे। अल्लाह अल्लाह, वो पंडित की लड़की जलेबी अपने हाथों से उसके मुंह में डाला, खाया गया, थोड़ी जलेबी बची है। अल्लाह अल्लाह, गौसे आज़म सरकार फरमाते हैं जलेबियां लेके क्या करेगी, अभी तक तुम मिन्नतें फरियादें कर रही थी, सारी की सारी जलेबियां इसे खिलाई जाए। गौसे आज़म का फरमान है, गौसे आज़म का हुक्म है, सारी की सारी जलेबी साफ कर दी गई। अल्लाह अल्लाह, वो बड़ी खुशी मगन से बगदाद की फिर जानिब लौट रही है, अपने घर के रास्ते को अख्तियार किया है। अब जब घर के अंदर पहुंचती है, उनकी माँ है, उनके बाप बिस्तर पर लेटे हैं, जो बहुत बड़े पंडित उस दौर के माने जाते थे बगदाद के। अल्लाह अल्लाह, उसकी माँ जब दरवाजे पे देखती है मेरी बेटी पूजा करके आई है आज, और कहती है बेटी तू पूजा करके आ गई, तो बेटी जवाब देती है हाँ मैं पूजा करके आ गई। अल्लाह अल्लाह, बहुत खुश है। वो कहने लगी क्या, किस बात की खुशी है? कहने लगी माँ तू जानती नहीं है, आज मैं अपने भगवान को सारी जलेबियां खिला के आई हूँ, सारी मिठाइयाँ खिला के आई हूँ। माँ ताज्जुब में पड़ गई, बाप अपने बिस्तर से उठ पड़ा है, अरे बेटी न जाने कितनी बरस से मैं पूजा करके आ रहा हूँ, आज तक उनके ज़बान को हिलते हुए नहीं देखा है, आज तक मैं उनसे कोई फरियाद किया हो तो जवाब भी मुझे नहीं मिला है, आज तू ये बातें कैसे कर रही है? इतने अंदर इतनी देर में घर के अंदर शोरो गुल होने लगे। ये बेटी बता दे क्या माजरा है, ये मिठाइयाँ किसको खिला के आई है, ये मिठाइयाँ किसको खिला के आई है? अल्लाह अल्लाह, जब माँ शक करने लगी, माँ खुद कहती है ये बेटी न जाने कितनी बार मैं भी मंदिर गई हूँ, अगर उनके दरबार में मैं गई हूँ, उनसे अगर कोई सवाल किया है अभी तक जवाब मुझे नहीं मिले हैं, न जाने कितने लोग नारियल चढ़ाते हो पीते भी नहीं है, न जाने कितने लोग मिठाइयाँ डालते हैं वो खाते भी नहीं है, न जाने कितने लोग दूध भी बनाते हैं लेकिन वो पीते नहीं है। आज ये नया मामला हुआ है, ये नया अनोखा मामला है। ये बेटी अभी बता दे तेरे बाप की शोहरत बगदाद में किस तरह है तू जानती है, सबसे बड़े पुजारी है तेरे बाप, सबसे बड़े पंडित माने जा रहे हैं तेरे बाप। अल्लाह अल्लाह, वो बेटी इसरार कर रही है नहीं माँ मैं किसी को खिला के नहीं आई हूँ, जो तुम शक कर रही हो मैं मेरा कोई आशिक व माशूक नहीं है दुनिया के अंदर, मैं किसी के आशिक के जाल में नहीं फंस के आई हूँ, वाकई में मैं अपने भगवान को मिठाइयाँ खिला के आई हूँ। अल्लाह अल्लाह, जब शोरो गुल होने लगे, बगदाद के सारे कमो बेश लोग उनके दरवाजे पर जमा हो गए। अल्लाह अल्लाह, अब उन्हें मारने की बाजी लगा दी गई। बाप कह रहा है लाओ तलवार, इसके सर को इसके तन से इसके सर को जुदा कर दिया जाए, इसके तन से इसको सर को उड़ा दिया जाए। ये मुझे बगदाद के अंदर मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ी है। अल्लाह अकबर कबीरा, बाप ही उसके ऊपर तोहमत लगा रहा है, उसको भी यकीन नहीं हो रहा है और यकीन होना भी नहीं चाहिए प्यारे। आज तक कायनात के अंदर ये कोई साबित नहीं कर सकता कि मंदिर के अंदर किसी को सवालों का जवाब मिला हो, आज तक ये कोई बंदे मोमिन, आज तक कोई गैर ये साबित नहीं कर सकता कि हमारे सवालों का जवाब उस दरबार से मिला हो या हमारी कोई चीज उन्होंने खाई हो, पेश की हो और वो मुझे अता किया हो। अल्लाह अकबर कबीरा, अगर वो चीज दिखाई गई है तो वैसे आज़म के कहने पर दिखाई गई है। सुनते चलो प्यारे, अब उसी में एक बूढ़ा शख्स आया है और कहने लगा बच्ची भी इसरार कर रही है, आप तोहमत के ऊपर जा रहे हैं तो चलो न जाने कितने, अगर इसको कत्ल ही करना है तो सिर्फ इसकी फरियाद की बात को सुन ही लेते हैं, इसके फैसले से इसके फैसले किए जाए, इसी के बाद से इसके फैसले किए जाए। अब वो बेटी बड़े फख्र के साथ कहती है बाबा मुझे मंदिर लेके चला जाए, अगर वो भगवान मेरी मिठाइयाँ को नहीं खाते हैं तो उसी दरबार में मुझे कत्ल कर देना लोगों के सामने। अल्लाह अल्लाह, अब लोग भी मजाके उड़ा रहे
रहे हैं, सारे बर्दार के काफिल चल दिए पीछे पीछे। अल्लाह अकबर कबीरा। जब चलते हैं, चलने लगे, जब क्या देख रहे हैं, उसके आंख से आंसू जारी है, अपने दिल पर हाथ रख के सोच रही है, हे भगवान मेरे ईश्वर, आज मेरी लाश तेरे हाथ में है। लोग तरह तरह के तोहमतें लगा रहे हैं, तू देख रहा है किस तरह मेरी मजाक के दराजे निकाले जा रहे हैं, किस तरह मेरे मजाक के चद्दर को फाड़े जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह जब उस मंदिर के करीब पहुंचा गया, फिर इसी तरीके से जिस तरीके से उसने अपने भगवान की दरबार में सारी चीजों को पेश किया था, इसी तरीके से वो पेश कर रही है। अब फिर उसके बाद में एक पैर के बल खड़ी होती है, हाथ जोड़ती है, सामने मिठाइयां रखती है, लेकिन अब वो फिर वैसे के वैसे हो गए। वो तो गौसे आजम सरकार ने कहा था, अब फिर वो पत्थर के पत्थर ही बन गए। अल्लाह अकबर कबीरा। कोई कह रहा है निकालो उसे मारा जाए, कोई कह रहा है इसके तन से इसके सर को जुदा किया जाए, कोई कह रहा है बीच चौराहे पर इसके कत्ल किए जाए। ये बहुत बड़ा इल्जाम इसने अपने ऊपर लगवाया है, तुम्हारा कहीं मुंह दिखाने के काबिल तुमको नहीं छोड़ा है। अल्लाह अल्लाह जब ये फैसले हो चुके हैं, अब उस लड़की के दिमाग में आया, चलो कल बाबा आए थे, मैं उनका नाम तो नहीं जानती हूँ, लेकिन उनके नाम का तस्करा कर देती हूँ। अब वो भगवान के कान पकड़ कर कहती है, सुन ले, जिसने तुम्हें कल बाबा आके हुक्म दिया था, उनके हुक्म पर तेरे जवान हरकत कर रहे हैं, तेरे जिस्म हरकत कर रहे थे, उसी बाबा का वास्ता है, आज भी तू खा के मेरी इज्जत बचा दे। जब इतना कहना था, अल्लाह की कसम, फिर वो दोबारा वही मूर्ति बोलना शुरू करती है, जानना शुरू करती है।